Hello dear students, before we begin with today's lesson, it's time to take the pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19, a promise to take all necessary precautions to prevent the spread of this deadly virus, a promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So dear students, we were reading chapter number 13, Stars, Planets and Moon, and today we will read the topic Moon, Earth's natural satellite. तो मून क्या है? ये अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है. The moon is about 3,84,400 किलोमीटर away from the earth. तो मून का अर्थ से डिस्टेंस कितना है? 3,84,400 किलोमीटर. The moon has no light of its own. तो मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती. It is actually the sun's light that bounces off from the surface of the moon and comes down to us. तो मून हमें शाइन करता हुआ क्यों नज़र आता है? क्योंकि जो सन की लाइट है वो मून के ऊपर पड़ती है और बाउंस बैक होके हमारे तक पहुंचती है. वी कॉल दिस लाइट एज मून लाइट, और हम उस लाइट को बोलते हैं मून लाइट. There are only rock, dust, mountains and huge ditches called craters on the moon. तो मून के ऊपर क्या है? Rocks, dust, mountains and huge ditches, जिनको बोलते हैं craters. There is no air on the moon, और मून के ऊपर एयर भी नहीं है. Recently small traces of water were discovered on the moon. तो हाल ही में मून के ऊपर वाटर के ट्रेसेस मिले हैं. Moon's orbit. The moon goes around the earth just like earth goes around the sun. तो जैसे अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है वैसे ही मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है. The moon takes about 27.3 days to make one trip around the earth. तो अर्थ के अराउंड उसको अपनी एक ट्रिप पूरी करने में 27.3 डेज लग जाते हैं. Phases of the moon. We see different shapes of the moon on different days. तो अलग अलग दिन में हम मून की अलग अलग शेप्स देखते हैं. When we do not see any moon in the sky, it means that we are not able to see its lit side at all. तो जब हम स्काई में मून को नहीं देखते तो इसका मतलब है हम उसकी जो साइड चमक रही होती है उसको नहीं देख सकते. It does not mean that the moon has left the sky for the night. इसका ये मतलब नहीं है कि मून कहीं चला गया है. मून हमेशा स्काई में प्रेजेंट रहता है, बस हम उसको कभी कभी देख नहीं पाते. This moon which we are not able to see is still present in the sky and is known as new moon. तो ये मून जो स्काई में प्रेजेंट होता है बट हम उसको देख नहीं पाते, उसको बोलते हैं न्यू मून. After the new moon, the moon takes a crescent shape and slowly turns into half moon. तो जब न्यू मून के बाद मून क्रेसेंट शेप ले लेता है, उस शेप के बाद वो हाफ मून में चेंज हो जाता है एंड देन फाइनली अ फुल मून. उसके बाद फुल मून होता है. यू कैन सी दिस इन द डायग्राम. फेजेस ऑफ द मून. ये है न्यू मून. जो मून स्काई में प्रेजेंट तो होता है पर हम इसको देख नहीं सकते. तो न्यू मून के बाद मून अपीयर होना शुरू हो जाता है तो हम थोड़ा सा मून देख सकते हैं. उसके बाद उसकी शेप आगे आगे बढ़ती जाती है और इस शेप को हम बोलते हैं क्रेसेंट शेप. ये दोनों शेप्स क्रेसेंट शेप के अंदर आएंगी और उसके बाद ये हाफ मून. जब हाफ मून हमें विजिबल हो और हाफ मून विजिबल ना हो उसको बोलेंगे हम हाफ मून. उसके बाद फिर फाइनली देयर कम्स द फुल मून. We can see the fully lit face of the moon on the full moon night. तो हम फुल मून नाइट पे फुल मून को देख सकते हैं. The moon then slowly reduces to half moon again and then back to new moon. तो फुल मून के बाद मून फिर से रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, फिर से वो हाफ मून में चेंज हो जाता है, फिर वो ले लेता है क्रेसेंट शेप और उसके बाद फिर से न्यू मून. This entire cycle of the moon takes about 29 days. और मून को ये साइकिल कंप्लीट करने में 29 डेज लग जाते हैं. डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून आर कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून. अब ये जो डिफरेंट शेप्स हैं मून की, इन्हीं को हम बोलते हैं फेजेस ऑफ द मून. For the first 14 days, when the lighted part of the moon goes on increasing, the moon is said to be waxing. तो फर्स्ट 14 डेज में जब मून का जो लाइटेड पार्ट है वो इंक्रीज होने लग जाता है उसको बोलते हैं मून इज़ वैक्सिंग.
The next 14 days, when the lighted part goes on decreasing, it is known as waning phase of the moon. तो जब मून का लाइटेड पार्ट डिक्रीज होने लग जाता है अगले 14 डेज में, उसको बोलते हैं वेनिंग. सो अब जैसे मून यहाँ पे इसका शेप इंक्रीज हो रहा था तो इसको लगेंगे 14 डेज. इन 14 डेज को बोलते हैं वैक्सिंग. और उसके बाद मून का शेप जो है वो डिक्रीज होने लग गया तो इसको बोलेंगे वैनिंग. इसमें भी 14 डेज लगेंगे इंक्रीजिंग में और डिक्रीज होने में भी 14 डेज लगेंगे और टोटल होंगे ये 29 डेज. स्टार्स. वी ऑल लाइक टू सी द स्टार्स ट्विंकलिंग इन द नाइट स्काई. तो सभी को नाइट स्काई में स्टार्स ट्विंकल करते हुए अच्छे लगते हैं. स्टार्स आर ऑल्सो ह्यूज बॉल्स ऑफ गैसेज बर्निंग विद फायर. तो स्टार्स असल में क्या होते हैं, वो भी बॉल्स ऑफ गैसेज ही होते हैं जैसे सन होता है, और ये भी फायर की तरह बर्न करते हैं. मोस्ट ऑफ द स्टार्स आर हॉट एंड फायरी. तो मोस्ट ऑफ द स्टार्स हॉट और फायरी होते हैं. स्टार्स अपीयर एज टाइनी डॉट्स ऑफ लाइट बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस. तो स्टार्स हमें टाइनी डॉट्स की तरह क्यों दिखते हैं, क्योंकि वो हमसे काफ़ी दूर है. सम पीपल इमेजिन्ड दैट द स्टार्स कुड बी जॉइंड बाई इमेजिनरी लाइन्स टू शो डिफरेंट पैटर्न्स. तो कुछ लोगों ने इमेजिन किया था कि स्टार्स इमेजिनरी लाइन्स के थ्रू डिफरेंट पैटर्न्स शो करते हैं. दीज पैटर्न्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस. और उन्हीं पैटर्न्स को बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन. मतलब जब स्टार्स का कोई पैटर्न बन रहा हो तो उस पैटर्न को हम कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं. ट्राई टू ऑब्जर्व द कॉन्स्टिलेशन शोन अलॉन्ग साइड ऑन अ क्लियर नाइट स्काई. तो आप भी कभी कॉन्स्टिलेशंस को ऑब्जर्व करने की कोशिश करना, मतलब पैटर्न्स देखना कि स्टार्स कौन सा पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं. जैसे एग्जाम्पल गिवन इज ओरायन. तो जब नाइट स्काई में ये शेप बनती है तो इस शेप को ओरायन बोलते हैं. ये कॉन्स्टिलेशन ओरायन है. और ये है अर्सा माइनर कॉन्स्टिलेशन. तो ये भी आप नाइट स्काई में ऑब्जर्व कर सकते हो. सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ प्लीज ओपन टुडेज रीडिंग असाइनमेंट. वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू प्लैनेट्स शाइन लाइक स्टार्स. तो प्लैनेट्स स्टार्स की तरह कैसे शाइन करते हैं, क्यों शाइन करते हैं? बिकॉज सन्स लाइट बाउंसेस ऑफ फ्रॉम द प्लैनेट सरफेस. क्योंकि जो सन की लाइट है वो प्लैनेट के सरफेस से बाउंस होके हमारे तक आ जाती है. तो हमें लगता है कि प्लैनेट शाइन कर रहे हैं, पर वो असल में सन की लाइट होती है जो उन पे से बाउंस होती है. सेकेंड क्वेश्चन इज वाई इज मून कॉल्ड एज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. तो मून को अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट क्यों बोला जाता है? बिकॉज मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ सेम वे सैटेलाइट्स रिवॉल्व. क्योंकि मून अर्थ के अराउंड इसी तरह से रिवॉल्व करता है जैसे कि सैटेलाइट्स रिवॉल्व करती हैं. और मून नेचुरल भी है तो इसीलिए इसको बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट. नाउ व्हाट इज न्यू मून. न्यू मून क्या होता है? द मून विच वी आर नॉट एबल टू सी बट इज प्रेजेंट इन द स्काई इज नोन एज न्यू मून. तो वो वाला मून जिसको हम देख नहीं सकते पर वो स्काई में प्रेजेंट रहता है उसको बोलते हैं हम न्यू मून. फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर कॉन्स्टिलेशंस. कॉन्स्टिलेशंस क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इन द स्काई दैट फॉर्म्स अ पैटर्न इज नोन एज कॉन्स्टिलेशंस. कॉन्स्टिलेशन होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स. स्टार्स का एक ग्रुप जो स्काई में कोई ना कोई पैटर्न फॉर्म करे, उसको बोलेंगे हम कॉन्स्टिलेशंस. So fifth question is, in approximately how many days does the moon complete an orbit around the earth? तो मून को अर्थ का ऑर्बिट कंप्लीट करने में कितने दिन लगते हैं? So in 27.3 days moon complete an orbit around the earth. तो मून को अर्थ का ऑर्बिट कंप्लीट करने में 27.3 days लगते हैं. So that's all dear students, all the very best.